سب سے پہلے بات ہوگی اہم قانون سازی کی، جس کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 11 نومبر کو طلب کر لیا گیا۔ بڑے مارکے سے پہلے قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے حکومت کو نمبر گیم میں پچھاڑ دیا۔ لوٹک ریسی روکنے کا اپوزیشن کا بل منظور ہو گیا۔ اپوزیشن رہنماؤں نے اکثریت کھونے پر حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ جوائنٹ سیشن کی حکمت عملی کے لیے وزیر اعظم نے پارٹی ارکان اور اتحادیوں کو کل ظہرانے پہ بلا لیا۔ وفاقی کابینہ کا 11 نومبر کی صبح 11 بجے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ قانون سازی کروانے کے لیے حکومت اور روکنے کے لیے اپوزیشن کی صف بندیاں تیز۔ اپوزیشن نے اسٹیئرنگ کمیٹی بنا کر ٹاسک سونپ دیا۔ مشترکہ اجلاس سے 2 روز پہلے ہی حکومت کو قومی اسمبلی میں بڑا جھٹکا۔ لوٹک ریسی روکنے سے متعلق نون لیگی رکن کے پرائیویٹ بل پر رائے شماری میں اپوزیشن نے 104 کے مقابلے میں 117 ووٹ سے میدان مار لیا۔ لیگی رکن ایاز صادق بولے اپوزیشن کی اخلاقی جیت ہوئی، حکومت اکثریت کھو بیٹھی ہے، وزیر اعظم اب فوری استعفیٰ دیں۔ ہار کے باوجود حکومت پر اعتماد، وزیر اعظم نے اتحادیوں کو ظہرانے پر بلا لیا۔ مشترکہ اجلاس میں نمبر گیم پوری رکھنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں جو ہمارے ممبران ہیں ان کی حاضری یقینی ہو، تاکہ ہم یہ الیکٹورل اور دوسرے جو قوانین ہیں ان کو منظوری دی جا سکے۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ حکومت کے دن پورے ہو گئے، ای وی ایم اور نیب آرڈیننس کی منظوری بھی روک کر دکھائیں گے۔ ہماری تیاری بالکل مکمل ہے۔ جو نیب آرڈیننس ان آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کو NRO دینے کے لیے عمران صاحب لا رہے ہیں، اب وہ اجلاس بلائیں، روئیں، چیخیں یا پٹیں، عمران خان صاحب کے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ترجمان نون لیگ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اتحادی ہی نہیں، وزیر اعظم کی اپنی پارٹی کے ارکان بھی ان کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پہلے متحدہ اپوزیشن متحرک حکومت کو نیب ترمیمی آرڈیننس اور EVM جیسی قانون سازی سے ہر حال میں روکا جائے گا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بیٹھک میں فیصلہ ہوا۔ بلاول بھٹو نے قائد حزب اختلاف کو مکمل ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ شہباز شریف کہتے ہیں حکومت چکمہ دے کر اجلاس بلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مزید بات ہوگی سما کے نمائندے ظہیر علی سے۔ ظہیر علی، شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں، کیا بڑی گفتگو رہی؟ جی بالکل، جو عشائیہ تھا وہ اپوزیشن لیڈر کی زیر صدارت وہاں پہ اجلاس بھی ہوا، اور جس میں یہ کہا گیا کہ جو حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے اس میں جو اپوزیشن ارکان ہیں اس کے ساتھ ان کی تعداد کو پورا کیا جائے، اور جو اہم لیجسلیشن حکومت کرنے جا رہی ہے جس میں EVM ہے اور جو نیب ترمیمی آرڈیننس میں جتنی بھی لیجسلیشن ہے اس کو روکنے کے لیے جو تمام پارلیمانی لیڈران ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ممبران کو اسلام آباد میں ہی رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ حکومتی اتحادیوں سے بھی رابطہ کیا جائے، تاکہ جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پارلیمانی فورم پہ حکومت کی جانب سے جو قانون سازی کی جا رہی ہے اس میں اپوزیشن کامیاب ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور JUIF سمیت دیگر جو پارلیمانی قیادت تھی ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے اپوزیشن لیڈر کو کہ ہم مکمل طور پر ساتھ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ حکومت کی جانب سے جو چکمہ دے کے اجلاس بلانے کی کوشش، مشترکہ اجلاس بلانے کی کوشش کی جائے گی، اس میں جو عام لیجسلیشن ہے جو اپوزیشن کے بعد جو جو حکمت عملی بنائی ہوئی ہے اس کے مطابق نمبر گیم پورے کیے جائیں اور حکومت کو پارلیمانی فورم پہ شکست دی جائے۔ ظہیر، شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اجلاس کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے سوال کیا گیا کہ کیا تبدیلی آ گئی، ان کا جواب آپ کو دکھاتے ہیں۔ کی دوائیاں نہیں مل رہی، ڈینگی کے بستر نہیں مل رہے اور آپ دیکھیں کہ لوگ مارے پھر رہے ہیں۔ ڈینگی نے برا حال کیا ہوا ہے اور حکومت کو دور دور تک اس کا احساس نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ تبدیلی اسے کہتے ہیں، اور لوگ اب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں تو پرانا پاکستان۔ وزیر اعظم تبدیل ہوں گے یا عام انتخابات ہوں گے؟ آپ کی کیا سر رائے ہے کہ وزیر اعظم تبدیل ہوں گے یا عام انتخابات ہوں گے؟ ہمیں انتخابات شفاف چاہیے، یہ قوم کی ڈیمانڈ ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ آج بھی ہماری اسی کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ یہ ملک اب آگے نہیں چل سکتا جب تک کہ شفاف الیکشن نہ ہو۔ اس حکومت نے، اس وزیر اعظم نے پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکالا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے لیے حکومت کی تیاریاں تیز ہیں۔ اپوزیشن کے کچھ ارکان کے ساتھ خفیہ رابطے کیے گئے ہیں۔ اہم قانون سازی کے وقت ایوان سے باہر رہنے کا پیغام دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پوری حاضری چاہتے ہیں، اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں نعیم اشرف بٹ۔
अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट से एक मरतबा फिर खुफिया राब्ते हुकूमती शख्सियात ने मिशन संभाल लिया। ज़राए के मुताबिक आला सरकारी शख्सियात की जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हमायत का कहा गया है। अपोजिशन अरकान को पैगाम दिया गया है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी के वक्त ईवान से बाहर रहें। इस वक्त पार्लियामेंट में हुकूमत को सिर्फ चंद अरकान की बरतरी हासिल है। तहम बिल्स की मंजूरी के वक्त हुकूमत ज्यादा से ज्यादा हमायत के लिए अपोजिशन के चंद अरकान की गैर हाजिरी की कोशिशें कर रही है, जिससे दोनों अतराफ के दरमियान फर्क बढ़ जाएगा और कानून साजी आसान हो सकेगी। इससे पहले फैटफ के मुसव्वदात की मंजूरी के वक्त भी अपोजिशन के चंद अरकान ईवान से गैर हाजिर रहे थे। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से भी भरपूर कोशिश की जा रही है कि कानून साजी के वक्त अपोजिशन के तमाम अरकान ऐवान में मौजूद हों। निमिष भट्ट, समा, लाहौर। आगे देखिए, एक तीर से दो शिकार। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं जिस कौम में अखलाकियात तबाह हो जाएं तो करप्शन सामने आती है। करप्शन वजीर आज़म से शुरू हो तो नीचे तक चली जाती है। हमने चोरी और करप्शन को बुरा ही नहीं समझा। जिस कौम में ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कवानीन हो वो पनप नहीं सकती। हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता हमारी मोरालिटी नीचे गिरी। अपने सामने ये सारा देखा। याद रखिए कि जो आपकी माशी डिक्लाइन होती है वो नहीं पहले आती, पहले आपकी अखलाकियात गिरती है, फिर आपकी माशी डिक्लाइन आती है। आपकी जो मोरालिटी जब क्रैश करती है उसके बाद आपकी इकोनॉमी जाती है। सारे अमीर तरीन मुल्कों में चले जाएं, उनमें एक चीज कॉमन होगी, उनके अंदर इखलाकी कुव्वत होगी इंसाफ देने के लिए। सारे गरीब मुल्कों के अंदर एक चीज कॉमन होगी, करप्शन। एक माशरा जिसके अंदर इखलाकियत नहीं होती वो इंसाफ भी नहीं कर सकता। वो फिर एनआरओ देता है, फिर वो डील्स करता है चोरों से। हम फिर ये ना कहें कि जी पटवारी करप्ट है, थानेदार करप्ट है। ऊपर से जब शुरू होता है प्राइम मिनिस्टर से और उसके वजीरों से, वो नीचे तक चली जाती है। रास्ता मुश्किल होगा, ये मैं आपको भी बता दूं कि राय हक का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। जब आप सच पे खड़े होते हैं आपके पास अल्लाह की कुव्वत आ जाती है। एक इंसान जो कि हक के ऊपर खड़ा हुआ है उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें। वन मॉरल मैन इज एन आर्मी। पीडीएम का मार्च सर्द मौसम की एक सरगर्मी है, इस बार भी कर लें, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को भानमती का कुनबा करार दे दिया। कहा पहले अपने पांव पर खड़े होना सीखें। ऑपोजिशन को 2 साल और फिर इलेक्शन के बाद मजीद 5 साल सब्र करना होगा। अपोजिशन ने पहले 2 साल पूरा जोर लगा लिया था हमें फारग करने के लिए। अभी अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। ये तो सारे एक भानमती का कुनबा है, ना इनके पास कोई लीडर है ना प्रोग्राम है। मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें। हर वक्त साजिशें करके आप कामयाब पहले भी नहीं हुए और हर वक्त ये कोई 90 की दहाई तो नहीं है कि आप हर वक्त वही उसी काम में लगे रहें। नवाज शरीफ साहब दिसंबर में क्यों वो इसी महीने वापस आए? हम तो चाहते हैं कि अपनी कोई कमिटमेंट चले पूरी कर लें। पीडीएम का मार्च है, ये हर साल हुआ है। ये पहले साल हुकूमत आई थी उस वक्त, उसके बाद अगले साल ये अपना जत्था लेके आ गए, उसके बाद फिर इन्होंने एक शुरू कर दिया, अब ये फिर उन्होंने शुरू कर दिया। सो ये उनकी एक विंटर एक्टिविटी है। फजलुर रहमान साहब चूँकि सर्दियों में थोड़े सारे जो है वो उनको लगता है कि ज़रा गर्मी जिस्म में चाहिए, तो ये ऐसे ही उनका एक बहाना है कि ज़रा दौड़ शौड़ लगाने का, तो लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मियाँ साहब आइन की हुक्मरानी चाहते हैं तो बैकडोर राबते और 2 बयानिए ख़त्म करवाएं। जियाले रहनुमा कमर जमान कायरा के एक तीर से 2 शिकार। कहा तहरीक इंसाफ की नाअहली की सज़ा कौम को भुगतना पड़ रही है। आज इमरान खान साहब आपके सीखते सीखते ये कौम पता नहीं किस हालत में चली जाएगी। अब इस मुल्क का सिर्फ एक इलाज है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा के इमरान खान से जान छूटे, और कोई हल नहीं। इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, लेकिन क्या करें, मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। मियां नवाज शरीफ साहब अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं तो फिर ये जो बैकडोर रास्ते हैं इनको खत्म कराएं। आपके अंदर जो 2 बयानिए चल रहे हैं उसको तो एक पेज पे ले आएं।
अगर आपके कुछ साथी आपको कह रहे हैं, आपके घर के अंदर से कह रहे हैं कि नहीं हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, किसके साथ? उनसे बातचीत करनी है जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले। वोट को इज्जत दो का नारा क्या है? सियासत के अंदर मुदाखलत खत्म की जाए, उन इदारों के साथ गुफ्तगू बंद की जाए जो रियासत के इदारे हैं लेकिन वो सियासत में मुदाखलत करते हैं। ये काम नहीं चलेगा, आपको क्लैरिटी के साथ सामने आना होगा। आपकी सारी जमात मियां साहब आपके साथ खड़ी होकर कौम को कहे वोट को इज्जत दो के नारे के साथ है। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई, फिर इस पर एक्शन का आगाज भी हो गया। इलेक्शन कमीशन के 2 आला अफसरान ओहदों से हाथ धो बैठे। जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर को OSD बना दिया गया। सुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अपने घर से अमल दरामद करते हुए बड़ा इकदाम। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आबिद हुसैन और डिप्टी डायरेक्टर अतहर अब्बासी ओहदे से फारिग। इलेक्शन कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट विंग ने दोनों अफसरान को OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरकजी सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने का हुक्म भी जारी। दोनों अफसरान को डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामी कोताही का मुर्तकिब करार दिया गया था। इलेक्शन कमीशन DRO और रिटर्निंग अफसर को इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर पहले ही OSD बना चुका। रवां साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने हल्के में दोबारा पोलिंग का फैसला सुनाते हुए पंजाब हुकूमत को डिप्टी कमिश्नर और DPO सियालकोट, RPO गुजरांवाला और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को ओहदों से हटाने का हुक्म भी दिया था। सुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात के मामले पर अपोजिशन का एतराज मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं बिलावल से पूछ कर तो हुकूमत नहीं चल सकती। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि हम भी किसी से जंग नहीं चाहते, मगर कलअदम जमात के मामले पर अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए। तो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कोई कंसेंसस पैदा नहीं हुआ। ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना किसी से इंगेज करें? रियासत से मुतल्लिक अहम फैसले हुकूमत ही करती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का प्रोग्राम 7 से 8 में बिलावल के बयान पर रद्द अमल। बिलावल साहब से पूछ के तो नहीं ना मुल्क की हुकूमत चल सकती, जब वो कभी जिसके इम्कानात कोई नहीं है जिंदगी में, किसी वक्त जो है उनको अक्सरियत मिली और वो हुकूमत में आए तो फिर वो फैसले करेंगे। इस वक्त फैसले हम करेंगे। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कलअदम TTP ने हजारों शहरियों का खून बहाया। हुकूमत बताए उनसे मुज़ाकरात किन शराइत पर किए जा रहे हैं। चाहे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो जोरे बाजू से घुटने टिका दे स्टेट के, तो वो उसके साथ बातचीत भी हो सकती है, उसकी सारी बातों को माना भी जा सकता है। तो फिर रेट ऑफ द स्टेट की बात ना करें ना, फिर झपटों की बात करें। मोहम्मद जुबैर ने मजीद कहा किसी से जंग मसले का हल नहीं, मगर हुकूमत को अपोजिशन के तहफ्फुज़ात दूर करने चाहिए। अब ये बताएं कि आर्मी चीफ ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा किया। जदीद टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी की कोशिशों की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौके पर टैंकों के लिए तैयार करदा खुदकार हथियारों के निज़ाम का मुशाहिदा किया। सिपा सलार ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कहा कि दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी किसी भी मुल्क की पहचान होती है। हमें खुद इन्हिसारी के मकसद का संगे मील अबूर करने पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ को हैवी इंडस्ट्रीज़ की सलाहियतों, मंसूबों, पैदावार और जिद्दत के इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रेक के बाद बात करते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस की। कत्ल के वक्त या उससे पहले या फिर उसके बाद पल पल क्या होता रहा, CCTV फुटेज ने क्या क्या रिकॉर्ड किया, पुलिस की जानिब से अदालत में जमा कराई गई तहरीरी कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई है। नूर मुकद्दम केस में CCTV फुटेज की तमाम तफसीलात सामने आ गयीं। नूर मुकद्दम 18 जुलाई रात 10 बजे मुलजिम के घर में दाखिल हुई। 4 घंटे बाद नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर ने बाहर मौजूद टैक्सी में सामान रखा। 2 मिनट बाद ही नूर मुकद्दम नंगे पांव भागती हुई गेट की तरफ आई। चौकीदार इफ्तिखार ने गेट बंद किया और मुलजिम जाहिर जाफर ने गेट पर ही दबोच लिया। नूर मुकद्दम जाहिर जाफर से मिन्नतें करती रही, मगर मुलजिम ने नूर मुकद्दम को घसीट कर घर में ले गया। 5 मिनट बाद नूर मुकद्दम मुलजिम के साथ बाहर आकर टैक्सी में बैठकर रवाना हो गई। 6 मिनट बाद दोनों बैग समेत घर में वापस आ गए।
अगले रोज 20 जुलाई की शाम 7:12 पर नूर मुकद्दम ने फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाई और गैलरी के साथ लगे जंगले पर गिरी। मकतूला हाथ में मोबाइल फोन लेकर बाहर जाने के लिए दरवाजे पर आई, मगर चौकीदार इफ्तिखार और माली ने गेट बंद कर दिया। कुछ ही देर में मुलजिम जाहिर जाफर टेरेस से कूदकर ग्राउंड फ्लोर पर आया और मकतूला नूर मुकद्दम को दरवाजे के साथ लगे केबिन में बंद कर दिया। मुलजिम ने नूर मुकद्दम से मोबाइल फोन भी छीन लिया। कुछ देर बाद मुलजिम नूर मुकद्दम को केबिन से निकालकर जबरदस्ती घर के अंदर ले गया। सिर्फ 55 मिनट बाद 8:06 पर थेरेपी वर्क्स की टीम दरवाजे से अंदर आई। 8:55 पर थेरेपी वर्क्स की टीम एक जख्मी को घर से बाहर ले जाती हुई दिखाई दी। कोयटा का सरकारी अस्पताल बीएमसी आवारा कुत्तों की आमाजगाह बन गया। फुटेज सामने आई तो एमएस ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। कोयटा का दूसरा बड़ा सरकारी अस्पताल बीएमसी, जिसकी ओपीडी में रोज़ाना 2000 के लगभग मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन रात के औकात में यही ओपीडी निजी सिक्योरिटी गार्ड और अमला ना होने की वजह से कुत्तों की आमाजगाह बन गई है। आवारा कुत्तों के गोल ओपीडी के अहाते और वार्ड्स में दंदनाते फिरते हैं, जिसकी वजह से मरीजों और इनके तीमारदारों को मुश्किलात का सामना है। हकीकत है, कुत्ते दंदनाते फिरते हैं और इधर जो है ना कोई इलाज है ना कोई दवाई है। सरकारी अस्पताल के एक टेक्नीशियन का दावा है कि मौजूदा एमएस ने अस्पताल को कौमी सतह का अस्पताल बना दिया है। ये जो भाई बातें कर रही है टोटली गलत कर रहे हैं। अभी जो नया एमएस आया हुआ है डॉक्टर नूरुल्लाह मुसाखिल, इसने बीएमसी को बिल्कुल इस्लामाबाद के तर्ज के हॉस्पिटल्स में बना दिया है। दूसरी जानिब एमएस बीएमसी डॉक्टर नूरुल्लाह मुसाखिल ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, जो रिपोर्ट मुरतब करने के बाद आला हुकाम को पेश करेगी। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। महंगाई में पिसे आवाम को बिजली ने झटका लगा दिया। नेपरा ने बिजली की कीमत में एक माह के लिए ₹2.52 फी यूनिट इजाफा कर दिया। 30 रोज के दौरान बिजली ₹5.59 फी यूनिट महंगी हो चुकी, यानी कीमत में 40% तक इजाफा हो गया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक बिजली की कीमत में हालिया इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वजीर आजम इमरान खान को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। महंगाई जो है उसके जिम्मेदार इमरान खान। जब हम छोड़ के गए थे तो 2% थी फूड इन्फ्लेशन और ओवरऑल इन्फ्लेशन 4% से कम थी, 3.9% थी। आज पाकिस्तान के अंदर फूड इन्फ्लेशन मतलब इस खित्ते में तकरीबन सबसे ऊपर है। आते साथ इन्होंने इंटरेस्ट रेट कर दिया 13%। हम 6% पे छोड़ के गए थे, जिसकी वजह से मईशत की कमर तोड़ी है इन्होंने। इमरान खान साहब वो टीम ले आइए, अब वक्त आ गया है। अब जो आपके पास अच्छे 200 लोग थे उसमें से कोई 5-7 तो लोग ले आओ। हमको ये ना बताओ कि अमेरिका में पेट्रोल कितने का मिलता है, हमको ये ना बताओ कि जर्मनी में आटा कितने का मिलता है। जब किसी आदमी को सर्दी लग रही हो तो उसको आपको लिहाफ देना चाहिए, उसको आपको जैकेट देना चाहिए, उसको आपको कंबल देना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि अमेरिका में इससे भी ज़्यादा सर्दी होती है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।